Good morning, students. In previous lecture of alcohols, I discussed about chemical reactions of alcohols which involve cleavage of oxygen-hydrogen bond. In today's lecture, I will discuss other two types of chemical reactions, that is reactions involving cleavage of carbon-oxygen bond and reactions due to complete alcohol molecule. First, cleavage of carbon oxygen bond. In cleavage of carbon oxygen bond, the reactivity order of alcohol is tertiary alcohol is more reactive compared to secondary and primary alcohol. Under this category, the first type of reaction is reaction of alcohols with halogen acids, which I discussed in detail in preparation of alkyl halides. Alcohol react with halogen acid to form alkyl halide. The reactivity order of halogen acid is HI is more reactive than HBr, which is more reactive than HCl. Mechanism of this reaction. On alcohol molecule, oxygen contain lone pair of electrons. This oxygen donates its lone pair of electron to hydrogen of halogen acid to form protonated alcohol. Now, in this protonated alcohol, the OH2 positive group is better leaving group compared to OH group. Now, from this protonated alcohol, loss of water molecule takes place to form carbocation. On this carbocation, attack of halide ion takes place to form alkyl halide. OH is strong base, that's why it is poor leaving group. Water is a weak base, so that's why it is a good leaving group. Nucleophilicity of halide ion decreases in the order. I negative is more nucleophilic compared to Br negative and Cl negative. Therefore, reactivity order of halogen acid decreases in order. HI more reactive compared to HBr and HCl. And order of reactivity of alcohol follows the order of stability of carbocation. That is, tertiary carbocation is more stable than secondary carbocation, which is more stable than primary carbocation. Therefore, reactivity order of alcohol is tertiary alcohol is more reactive compared to secondary and primary carbocation. Now, reaction of alcohol with HCl. Primary and secondary alkyl chlorides are prepared by using HCl gas in presence of corresponding alcohol and anhydrous zinc chloride. Reaction of alcohol in presence of HCl gas and anhydrous zinc chloride yield corresponding alkyl chloride. If reaction is carried out with primary alcohol, the product formed is primary alkyl chloride, and if reaction is carried out with secondary alcohol, the product formed is secondary alkyl chloride. Tertiary alcohols, however, react with HCl at room temperature to form tertiary alkyl chloride. Here there is no use of anhydrous zinc chloride, no need of anhydrous zinc chloride. This reaction takes place in the absence of anhydrous zinc chloride because tertiary alcohol is more reactive than secondary and primary alcohol. तो सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल से टर्शियरी अल्कोहल क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है. इस वजह से हमें यहाँ पे कैटलिस्ट एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं. Now, what is the second in this preparation of alkyl bromide and alkyl iodide? Alkyl bromides are prepared by refluxing suitable alcohol with HBr in presence of sulfuric acid. While alkyl iodides are prepared by refluxing suitable alcohol with HI to give alkyl iodide.
यहाँ पे भी हमें इन दोनों रिएक्शंस में भी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो HBr है या HI जो हमारा हेलोजन एसिड है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है कंपेयर टू HCl। HCl से इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे हमें कैटलिस्ट एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं पड़ती। Primary alcohols react with halogen acid by SN2 mechanism, while secondary and tertiary alcohols react with halogen acid by SN1 mechanism. In SN2 mechanism, alcohol react with H positive ion from halogen acid to give protonated primary alcohol. Now, halide ion will attack on alcohol molecule from backside. That is, reaction takes place through transition state formation to form alkyl halide. SN2 मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म हम डिटेल में alkyl halides में कर चुके हैं कि जब हमारा alkyl halide उसमें स्टेरिक हिंडर्स नहीं होती यानी कि प्राइमरी होता है, तब रिएक्शन किससे होती है? बाय SN2 मैकेनिज्म यानी थ्रू ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन। इन ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस फ्रॉम बैक साइड टू गिव द प्रोडक्ट। इन SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। अल्कोहल रिएक्ट विद H positive ion to give protonated alcohol. Now from this protonated alcohol, loss of water molecule takes place to give carbocation. This step is slow and rate determining step. Now on this carbocation, the attack of halide ion takes place to give alkyl halide. This carbocation is planar, so attack can take place from front side or back side. Now, what is the purpose of anhydrous zinc chloride in reaction of primary and secondary alcohol with HCl? Zinc chloride is a Lewis acid. Being Lewis acid, it coordinates with lone pair of electron of OH molecule, or we can say of lone pair of electrons of oxygen atom. This will result in weakening of carbon-oxygen bond, as by donating electrons to anhydrous zinc chloride, oxygen acquires positive charge. Now, oxygen is more electronegative than carbon, so it withdraws bonded electrons more towards itself, thereby causing weakening of carbon-oxygen bond. Now, this bond will cleave easily to give carbocation. Now this carbocation is attacked by halide ion to give product alkyl halide. अब ये पर्पस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का क्या है कि जिंक क्लोराइड क्या है? लुईस एसिड है। अब ये लुईस एसिड है तो ये ऑक्सीजन से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी जिंक क्लोराइड कोऑर्डिनेट करेगा विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल। अब जब ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जिंक क्लोराइड को डोनेट कर देगा, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू कार्बन, तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? खत्म करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? इजिली क्लीव होएगा। जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव होएगा, हेट्रोलिसिस क्लीवेज होगी, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगी? हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे वापस क्या आ जाएंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमें क्या मिलेगा? कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन पे अटैक होगा एक्स नेगेटिव का, यानी कि Cl नेगेटिव का, टू गिव द प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड। अगर कार्बोकैटायन जो बनता है उसका नेचर कैसा है कि वो फर्दर रीअरेंज कर सकता है, तो हमें क्या मिलेगा? रीअरेंज प्रोडक्ट मिलेगा। कार्बोकैटायन जो भी रिएक्शंस किस मैकेनिज्म से होती है? थ्रू कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। उसमें चांसेस क्या होते हैं? रीअरेंज प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का, टर्शियरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू सेकेंडरी एंड
प्राइमरी। तो अगर सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और चांसेस है उसके कन्वर्ट होने के टर्शियरी कार्बोकैटायन में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोर स्टेबल टर्शियरी कार्बोकैटायन में, और हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? रीअरेंज प्रोडक्ट। जैसे हमारी क्या है? नियोपेंटाइल अल्कोहल है, इस पे हेलोजन एसिड का अटैक होगा H पॉजिटिव का, हमें क्या मिलेगी? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस में होगा, हमें मिलेगा कार्बोकैटायन। अब ये हमारा क्या है? प्राइमरी कार्बोकैटायन है। लेकिन अगर यहाँ से मिथाइल ग्रुप माइग्रेट कर जाए किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर, तो ये कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? टर्शियरी कार्बोकैटायन में। अब ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है, मोर स्टेबल होगा प्राइमरी कार्बोकैटायन से, तो हमारा जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है ये मोर स्टेबल टर्शियरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होएगा, और उसके बाद किसका? हैलाइड आयन का अटैक होएगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा रीअरेंज प्रोडक्ट बनेगा। व्हाट इज द लुकास टेस्ट? लुकास टेस्ट क्या होता है? ये यूज होता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लुकास रिएजेंट। अब लुकास रिएजेंट क्या होता है? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेटेड HCl का क्या होता है? ये मिक्सचर होता है। तो लुकास टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो हमारी अल्कोहल है उसको ट्रीट करते हैं लुकास रिएजेंट के साथ एट रूम टेम्परेचर, और फिर क्या ऑब्जर्व करते हैं कि टर्बिडिटी अल्काइल हैलाइड के कारण जो बन रही है वो कितनी देर में बन रही है। और ये जो रिएक्शन है किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी के ऊपर ये रिएक्शन डिपेंड करती है। लुकास रिएजेंट क्या हो गया? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। और इस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो हमारी अल्कोहल है उसको हम रिएक्ट कराते हैं लुकास रिएजेंट से एट रूम टेम्परेचर, और ऑब्जर्व क्या करते हैं? टर्बिडिटी। टर्बिडिटी किसके कारण बनती है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगर टर्बिडिटी तुरंत आ जाती है, यानी इफ टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, आपने जैसे ही रिएक्टेंट्स को मिक्स किया और टर्बिडिटी तभी आ गई, तो जो आपका अल्कोहल है वो है टर्शियरी अल्कोहल। अगर टर्बिडिटी 5 मिनट बाद आ रही है, यानी आफ्टर सम टाइम आ रही है, तो आपका अल्कोहल है सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर पे अपीयर नहीं हो रही है तो अल्कोहल है प्राइमरी। इनिशियली जब आप अल्कोहल की रिएक्शन की थी हेलोजन एसिड में, तब हमने पढ़ा था कि जो टर्शियरी अल्कोहल है वो मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो जब प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो हम उसमें क्या डालते हैं? अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की, तब उसमें हम क्या डालते हैं? अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो अगर टर्शियरी अल्कोहल है तो रूम टेम्परेचर पे इमीडिएटली रिएक्ट करके हमें क्या दे देता है? अल्काइल हैलाइड दे देता है, यानी टर्बिडिटी तुरंत आ जाती है। अगर टर्बिडिटी कितने देर पे? थोड़े टाइम बाद आए तो जो आपकी अल्कोहल है वो सेकेंडरी है, और टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर पे नहीं आती है तो अल्कोहल क्या है? प्राइमरी है। This shows that primary alcohol is least reactive while tertiary alcohol is most reactive। या आपकी इथाइल अल्कोहल है, इसको आपने लुकास रिएजेंट से रिएक्शन कराई, नो रिएक्शन है और नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। अगर टर्बिडिटी क्या आ रही है? 5 मिनट में आ गई, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है यानी सेकेंडरी अल्कोहल है। टर्बिडिटी 5 मिनट्स में आ रही है तो आपकी क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर टर्बिडिटी इमीडिएटली आ जा रही है तो आपकी क्या है? टर्शियरी अल्कोहल है। तो लुकास रिएजेंट है वो हेल्पफुल है इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। आपके पास प्राइमरी अल्कोहल्स है और आपको पता नहीं है कि कौन सी प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है, कौन सी टर्शियरी है, तो हम पहचान कर सकते हैं अल्कोहल्स की बाय यूजिंग लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या होता है? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड HCl। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ बोथ R एंड OH बॉन्ड, यानी रिएक्शन जो कंप्लीट अल्कोहल मॉलिक्यूल के कारण हो, और इसमें क्लीवेज किसका हो रहा है? बोथ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का। सो इसमें जो हम स्टडी करेंगे वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स
in presence of acidic alkaline or neutral KMnO4 potassium dichromate or in presence of dilute nitric acid. इन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। यहाँ से हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में से हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की हाइड्रोजन का, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल बॉन्ड। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप विद रिमूवल ऑफ H2 is also called as dehydrogenation reaction. प्राइमरी अल्कोहल्स की अगर हम ऑक्सीडेशन करें, एंड प्राइमरी अल्कोहल्स आर फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड विद अंडरगो ऑक्सीडेशन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब प्राइमरी अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो जो हमें एल्डिहाइड मिलेगा उसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे एज प्राइमरी अल्कोहल और एज स्टार्टिंग अल्कोहल, और जो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा उसमें भी कार्बन नंबर सेम होगा एज दैट ऑफ स्टार्टिंग अल्कोहल। तो यहाँ पे कार्बन नंबर का कोई चेंज नहीं है। जैसे हमने क्या लिया, इथाइल अल्कोहल लिया, इसकी ऑक्सीडेशन की तो इथाइल अल्कोहल से हमें क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड मिलेगा? एसिड एल्डिहाइड, या जिसको हम बोलते हैं इथेनॉल। एथाइल अल्कोहल में भी 2 कार्बन है, इथेनॉल में भी क्या होंगे? 2 कार्बन होंगे। इसकी जब हम फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड, इसमें भी 2 कार्बन एटम है। तो जो हमारा स्टार्टिंग अल्कोहल है और जो हमारा एंड प्रोडक्ट है यानी कि एसिड है, उन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे? सेम होंगे। ऑक्सीडेशन को हम एल्डिहाइडिक स्टेज तक भी स्टॉप कर सकते हैं बाय यूजिंग स्पेशल रिएजेंट इन एनहाइड्रस डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन सॉल्वेंट यूज करते हैं और स्पेशल रिएजेंट यूज करते हैं जो है पोरे रिएजेंट, जिसको हम बोलते हैं पिरिडीनियम क्लोरोप्रोमेट या पीसीसी या पिरिडीनियम डाइक्रोमेट पीडीसी। पीडीसी या पीसीसी को यूज करके इन anhydrous medium in presence of dichloromethane as solvent रिएक्शन को हम स्टॉप कर सकते हैं या ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल को हम स्टॉप कर सकते हैं एट एल्डिहाइडिक स्टेज। कोरे रिएजेंट को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? बाय मिक्सिंग पिरिडीन विद क्रोमिक एनहाइड्राइड और जिसको हम बोलते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन HCl इन यूजिंग सॉल्वेंट डाइक्लोरोमीथेन। तो जो रिएजेंट मिलेगा उसको हम बोलते हैं पिरिडीनियम। पिरिडीनियम यानी कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दे दिया H पॉजिटिव को, ये किस में कन्वर्ट हो गया? पिरिडीनियम आयन में, और ये हो गया CrO3Cl नेगेटिव। तो पिरिडीनियम क्लोरोप्रोमेट जिसको हम बोलते हैं PCC, ये है स्पेशल रिएजेंट। और जब इस रिएजेंट को यूज करके हम ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल की, तो जो हमारी प्राइमरी अल्कोहल है वो एल्डिहाइडिक स्टेज तक ही जाएगी, वो एसिड में कन्वर्ट नहीं होगी। यहाँ पे आपको ध्यान करके ये रखना है कि जो रिएजेंट जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं वो होता है एनहाइड्रस डाइक्लोरोमीथेन यानी कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज करते हैं जो क्या है? एनहाइड्रस डाइक्लोरोमीथेन। मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय एक्वस पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब हम एक्वस पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन करते हैं, डाइक्रोमेट है एक्वस यानी पानी की प्रेजेंस में, एसिडिक कंडीशन में, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है क्रोमिक एसिड। अब ये जो क्रोमिक एसिड है ये अल्कोहल से रिएक्ट करके क्या बना लेगा? क्रोमेट एस्टर। अब इस क्रोमेट एस्टर से इंट्रामोलिकुलर या इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन का लॉस होगा। यहाँ OH2 वाटर मॉलिक्यूल है, H एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएंगे? क्रोमियम पे आ जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इसमें कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइडिक स्टेज में। इंट्रामोलिकुलर में क्या हो जाएगा? क्रोमियम के जो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन अटैक करेगी हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन और कार्बन का बीच का बॉन्ड शिफ्ट होगा बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन पेयर क्रोमियम और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर किस पे चले जाएंगे? क्रोमियम पे। तो ये होगी इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन लॉस से हमें क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा।
अब ये जो एल्डिहाइड बना, अब हमारा रिएक्शन मीडियम क्या है, एक्वस है। अब एक्वस मीडियम में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल। एल्डिहाइड वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके क्या बना देगा, एल्डिहाइड हाइड्रेट। अब ये एल्डिहाइडिक हाइड्रेट जो बना, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जब हम स्पेशल रिएजेंट यूज करते हैं, पीसीसी या पीडीसी, वो हम किस कंडीशन में यूज करते हैं, अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस कंडीशन यूजिंग सॉल्वेंट डाइक्लोरोमीथेन। अब एनहाइड्रस कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। जब वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा तो एल्डिहाइड जो है वो एल्डिहाइड हाइड्रेट में कन्वर्ट नहीं होगा। एल्डिहाइड हाइड्रेट में अगर वो कन्वर्ट नहीं होगा तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज किसमें नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्पेशल रिएजेंट से जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होता है अप टू एल्डिहाइडिक स्टेज। लेकिन अगर हम यही रिएक्शन करेंगे किसके साथ, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ या KMnO4 के साथ, तो जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा अप टू कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि KMnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट और जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या करा देगा, एक्वस फेज में रिएक्शन होती है, वहां पे वाटर मॉलिक्यूल होगा, जो एल्डिहाइड बनेगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड हाइड्रेट में, जो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो आपकी ऑक्सीडाइज होंगे किसमें, कीटोन में, विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। फिर जो एसीटोन है फर्दर ऑक्सीडाइज होगा एसिटिक एसिड में, जिसमें क्या होगा, एक कार्बन लेस होगा, यानी जो हमें एसिड मिलेगा वो उसमें एक कार्बन कम होगा कंपेयर टू स्टार्टिंग अल्कोहल। जैसे हमारी क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा, एसीटोन। अब इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड। ये 3 कार्बन का है, एसीटोन बना ये भी 3 कार्बन का है, लेकिन जो हमारा एसिटिक एसिड बना ये क्या है, 2 कार्बन का, 1 कार्बन लेस देन स्टार्टिंग अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेकेंडरी अल्कोहल में जो आपका एसिड बनेगा विद 1 कार्बन लेस। टर्शियरी अल्कोहल जो है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे किसमें, सेकेंडरी कीटोन्स में, और जब वो उनकी फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिड में। अब ये हमारी क्या है, टर्शियरी अल्कोहल, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में विद 1 कार्बन लेस। और फिर जब इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसिड विद 2 कार्बन लेस। तो जो टर्शियरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होगा किसके अंदर, कीटोन में, फर्स्ट कन्वर्जन कीटोन में, सेकेंड कन्वर्जन एसिड में विद 2 कार्बन लेस। जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल था वो कीटोन में कन्वर्ट होता था विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर वो एसिड में कन्वर्ट हो रहा था विद 1 कार्बन लेस। लेकिन टर्शियरी अल्कोहल में क्या आ रहा है कि टर्शियरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होगा विद 1 कार्बन लेस, और फिर वो कीटोन जो बनेगा वो एसिड में कन्वर्ट होगा विद 1 कार्बन लेस। यानी कि जो हमारा एसिड बनेगा इन केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल उसमें 2 कार्बन कम होंगे कंपेयर टू स्टार्टिंग अल्कोहल। अभी हमारा क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल 2, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन एटम है, लेकिन जो हमारा एसिड बना, एंड प्रोडक्ट बना, इसमें कार्बन एटम कितने हैं, 2 हैं। तो जो हमारा एंड प्रोडक्ट है उसमें कार्बन नंबर कितने कम है, 2 कम है कंपेयर टू स्टार्टिंग अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर एसिड बनेगा विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होगा किसमें, कीटोन में विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, और फिर वो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा एसिड में विद 1 कार्बन लेस। टर्शियरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होगा किसके अंदर, कीटोन में विद 1 कार्बन लेस, फिर ऑक्सीडाइज होगा एसिड में विद 2 कार्बन लेस। नाउ एक्शन ऑफ हॉट कॉपर ऑन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड
टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे कॉपर एट 573 केल्विन, तब हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे कॉपर के साथ एट हाई टेम्परेचर, तो हमें मिलेगा कीटोन। और टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे कॉपर के साथ एट हाई टेम्परेचर, तो हमें क्या मिलेगा, एल्कीन। तो अगर हम हॉट कॉपर के साथ रिएक्शन कराते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल की, प्राइमरी अल्कोहल हमें देगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल हमें देगा कीटोन, और टर्शियरी अल्कोहल हमें क्या देता है, एल्कीन। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ऑप्न्योर ऑक्सीडेशन। हमने पहले पढ़ा था एमपीवी रिडक्शन। एमपीवी रिडक्शन में क्या हो रहा था कि जो आपकी कीटोन थी वो ऑक्सीडाइज हो रही थी सेकेंडरी अल्कोहल में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसकी रिएक्शन कराएंगे हम एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड से इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो सेकेंडरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कीटोन में, एसीटोन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा किसमें, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में। So by this method secondary alcohols can be easily oxidized to ketone. Now this is secondary alcohol, इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड से, तो हमें मिलेगा एल्युमिनियम एल्कोक्साइड। अब ये जो एल्युमिनियम एल्कोक्साइड है रिएक्शन करेगा कीटोन के साथ, यहाँ इसका जो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है ये ट्रांसफर होएगा फ्रॉम कार्बन टू कार्बोनिल कार्बन ऑफ एसीटोन। हाइड्रोजन कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, फ्रॉम जो आपका एल्युमिनियम एल्कोक्साइड है उसमें जो कार्बन है उसमें जो हाइड्रोजन यानी सेकेंडरी जो हाइड्रोजन है ये ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम कार्बन टू कार्बोनिल कार्बन, और उससे हमें क्या मिलेगा, हाइड्राइड शिप से कीटोन मिलेगा, और साथ में हमें क्या मिल जाएगी, जो आपका एसीटोन है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल में। दिस इज नोन एज opennure oxidation, which is inverse of MPV reduction. That's all for today. Thank you.